अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपकी होस्ट रुबाब शाह और आपको आज के प्रोग्राम में खुशामदीद कहती हूँ। नाज़रीन, आज का हमारा शो उस सिलसिले की अहम और मुनफरिद कड़ी है, जिसके ज़रिए हम जर्मनी में मुकीम पाकिस्तानी ख़वातीन की तर्ज़ ज़िंदगी और उनके मसाइल पर रोशनी डालते हैं। उसके साथ-साथ हम जर्मन माशरे में देसी ख़वातीन का किरदार और जर्मन हुकूमत की तरफ से दिए गए उनके हकूक़ पर भी वक़्तन-फ़वक़्तन गुफ्तगू करते रहते हैं। आज का हमारा शो उन बुनियादी सवालात का जवाब है जो कि ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि जर्मनी में भी अक्सर उठाए जाते हैं, जैसे कि वीमेन एम्पावरमेंट क्यों ज़रूरी है? क्यों औरत का आवाज़ उठाना और उसका सुना जाना अहम है? क्यों और कैसे औरत की बेहतर नुमाइंदगी कर सकती है? इन तमाम सवालात के जवाबात हम जानेंगे आज अपने मुअज़्ज़ज़ मेहमानों से, जो कि जर्मनी के सबसे बड़े देसी ख़वातीन के सोशल मीडिया ग्रुप से मुंसलिक हैं। उनसे जानेंगे कि किस तरह महदूद वसाइल के होते हुए वो जदीद टेक्नोलॉजी की मदद से जर्मनी में मौजूद ख़वातीन की ज़िंदगियों में तब्दीलियाँ ला रही हैं और उन्हें मुख्तलिफ़ तरीक़ों से मदद फ़राहम कर रही हैं। हमें जॉइन किया है आज साइमा सिद्दीक ने, जो कि आरडीडी की को-एडमिन हैं और फ्रैंकफर्ट में मुकीम हैं। हमारी अस्सलाम दूसरी मेहमान हैं वालेकुम हमारी दूसरी मेहमान है सिदा ज़फ़र, जो कि कील जर्मनी में मुकीम हैं। उन्होंने लिटरेचर एंड कल्चरल स्टडीज़ में मास्टर्स किया हुआ है। हमारी तीसरी मेहमान हैं अस्का जाफ़री, जो कि म्यूनिख में मुकीम हैं और ख़वातीन पर होने वाले घरेलू तशद्दुद पर काम कर रही हैं। इन तमाम ख़वातीन को बाकायदा वेलकम करने से पहले मैं चाहती हूँ कि हम आरडीडी की एडमिन, जो कि सानिया शगुफ्ता भट्ट हैं और अनफॉर्चुनेटली वो आज हमें जॉइन नहीं कर पाई, पर उन्होंने अपना एक वॉइस नोट भेजा है। मैं चाहती हूँ कि हम वो सुनें और उसके बाद प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करें। Assalamu alaikum. Thank you, Jazba News Germany, for your kind coverage of RDD and the efforts of our whole team. Today marks 5 years of RDD. We are honored to share our celebrations with you. RDD was an idea which began in 2016, inspired by a help group in the UK. On October the 3rd of that year, RDD was set up with my immediate friend circle. Although at that time, small Facebook groups were around, there was something huge which was missing. Not only a place for Desi ladies to turn to, but also a platform to help bring out the diamonds in the community and for them to be celebrated. Also, encouraging those who have dreams like setting up one's own business, help with making a career change, writing, blogging and vlogging, or just having the support to make these dreams a reality. RDD stands for Recommend Desi Deutschland, to recommend, to support, to encourage, and to be part of a unified and positive environment of sisterhood. As time went on, we carefully listened to our ladies and tried to help find solutions to many matters which were prevalent. Hence came our segments, which covered many aspects. Matrimonial Monday, Deutsch am Dienstag, Kids & Co., Think Natural Thursday, Business Promotion Days, NDD, our sister group, a very busy selling platform, RDD Yearly Charity Run, and RDD Health Forum. These are just a few to mention. These segments have been welcomed and loved by our ladies. The best part, which Saima, my co-admin, and I feel overjoyed about, is the fact that each segment, each sister group, and each team is run by our RDD ladies themselves. We are all RDD. That is a beauty which sets us apart and is the foundation of why RDD is the most active, helpful, and loved Desi ladies group in Germany. So we are told. Thank you to each and every RDD lady for all that you do. A special thanks also to the Daily Motivation team, the Golden Hearts Listeners team, the Translation team, the Rishta team, and the Health Awareness Lead. The times we live in today, mental health awareness and well-being is highly important, and RDD strives to be at the forefront and to work together with professionals who so kindly and willingly give their time and expertise to our women, some who are in dire need of healing, some sadly victims of domestic abuse, others just finding their way in a new environment. We thank each and every volunteer and look forward to many great projects we have going on behind the scenes. Apna RDD, Apna Platform, Apnapan. तो नाज़रीन, ये मैसेज था जो कि बहुत ही खूबसूरत था और बहुत खूबसूरत अल्फाज में उन्होंने अपनी फीलिंग्स का इज़हार किया है आरडीडी की बर्थडे पर, और हमें बताया है कि आरडीडी किस तरह ख़वातीन की ज़िंदगियों में चेंज लेकर आ रहा है। अब मैं शो का बाकायदा आगाज़ करना चाहूँगी और अपनी तीनों मेहमानों को वेलकम करती हूँ। थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस टुडे ऑन जज़्बा न्यूज़, और अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, आगाज़ मैं साइमा आपसे करना चाहूँगी क्योंकि आप एडमिन हैं आरडीडी की। हमें थोड़ा-सा बताएँ कि व्हाट डज़ आरडीडी स्टैंड फॉर? मतलब आरडीडी ये नाम कैसे रखा, क्यों रखा, नाम के पीछे क्या बैकग्राउंड है, किसका आइडिया था और आरडीडी बेसिकली है क्या?
RDD बेसिकली आइडिया सानिया का था, मेरी जो साथ एडमिन है। हम बेसिक आइडिया उसके पीछे ये था कि हम चाह रहे थे कि कोई ऐसा नाम मतलब बने जिससे सिर्फ पाकिस्तानियों को मतलब रिलेटेड कोई ऐसी चीज नजर ना आए, या ग्रुप कोई ढूंढा जाए तो उसमें सिर्फ पाकिस्तानी कोई ढूंढे तो उसको वो ग्रुप मिले। इसमें ये था कि रिकमेंड देसी डॉइचलैंड का मतलब है कोई भी देसी जर्मनी में बैठे हुए अपनी रिकमेंडेशंस किसी प्लेटफॉर्म पे शेयर कर सकता है। कोई मदद मांगनी है किसी भी देसी ने, देसी में हम लोग इंक्लूड कर रहे हैं चाहे वो इंडियंस हैं, पाकिस्तानीज हैं, बांग्लादेशीज हैं, या कोई भी कोई और भी नेशनैलिटी जिसका लिंक सब कॉन्टिनेंट कंट्री से है, चाहे वो उनकी शादी हुई भी हो किसी पाकिस्तानी, इंडियन, बांग्लादेशी मर्द से, मतलब किसी का भी लिंक जो अपने कंट्रीज से जो है वो उस प्लेटफॉर्म पे आके लेडी अपने मतलब मसले मसाइल हैं या जो भी काम है वो उस पे सॉल्व कर सकें, उनको हेल्प मिले भरपूर। तो ये रेकमेंड देसी डॉइचलैंड इस तरीके से बना। और आइडिया हमें मिला, मतलब सानिया को मेनली ये आइडिया उसको दिखा। यूके बेस्ड एक ग्रुप है जो काफी अरसे से इस काफी स्ट्रक्चर के साथ भी काम कर रहे हैं। और जाहिर है उनके यूके में तो देसी उनकी तो पॉपुलेशन काफी ज्यादा है, हम कंपेयर नहीं कर सकते जर्मनी से, लेकिन वो काफी ऊंचे पैमाने पे इस चीज पे काम कर रहे थे। और हमें था कि मतलब यहाँ जर्मनी में भी कोई ऐसा ग्रुप हो जिसपे सिर्फ खवातीन आए और अपने मतलब अपने आप को एक तरह से घर की तरह मतलब उनको महसूस हो, वो फैमिली की तरह उनको हम वेलकम करें, और वो कोई भी बात हो, कोई भी उनके दिल में जो भी चीज हो वो सामने लाएं और पूछें बिना झिझक। सही। तो ये कब आपने बनाया था, किस साल में? 2015 में हमने स्टार्ट लिया था 3 अक्टूबर को। तो अच्छा। आज 5th एनिवर्सरी भी है आरडीडी की, तो माशाल्लाह। एक तरह से सही ये है। माशाल्लाह काफी अच्छा मौका है कि हम सब लेडीज को जो हमारी मेंबर्स हैं उनको हम अप्रिशिएट करें कि उन्होंने हमें इन 5 सालों में इस मुकाम पे पहुंचाया है कि हम अब आगे आए हैं और इसको अब मीडिया पे शो कर रहे हैं। बेशक नहीं, ये तो एक वाक़तन एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि विदिन 5 इयर्स एक इतना बड़ा ग्रुप एग्जिस्ट कर रहा है, वो भी सिर्फ पाकिस्तानी खवातीन का नहीं, देसी खवातीन का, जो कि हर लिहाज से खवातीन की नुमाइंदगी करने के काबिल है। और उसकी एक खुशी मुझे सबसे ज़्यादा ये हो रही है कि उसको इनिशिएट करने वाले पाकिस्तानी खवातीन हैं, जो कि इट्सेल्फ एक अचीवमेंट है। अच्छा, मुझे सहमा थोड़ा-सा बताएँ कि जब आपने स्टार्ट किया था तब कितने ग्रुप मेंबर्स थे और अब कितने ग्रुप मेंबर्स हैं? जब स्टार्ट लिया था तो हमने उस टाइम सिर्फ अपने जो हमारे सर्कल है जिनसे हमारा मिलना जुलना था उनसे स्टार्ट लिया। फिर ये एक तरह से होता है कि एक ने एक को बताया, दूसरे ने 3 को बताया, ऐसे बढ़ते बढ़ते मतलब जबानी तरीके से इसमें हम लोगों के मेंबर्स बढ़े। फिर आहिस्ता आहिस्ता हमें अंदाजा हुआ कि हम सिर्फ फ्रैंकफर्ट में नहीं है लेडीज, बल्कि हम पता नहीं जर्मनी के कौन कौन से कोनों तक हम पहुंच चुके हैं। मतलब हमारी रेंज इतनी जल्दी इतनी दूर तक पहुंची, ये नहीं सोचा था कि मतलब बहुत से देसी औरतें जो हैं मतलब इतने छोटे छोटे गांव में रह रही हैं जहां पर एक भी दूसरा कोई देसी बंदा नहीं रह रहा। और अच्छा। उनको जो फीलिंग्स आई कि इस ग्रुप को ज्वाइन करने के बाद, वो मतलब काफी हमें जो फीडबैक मिलता था, हमें लगता था कि वाकई इनके तो मतलब जो डेली लाइफ में थोड़े से जो मसले मसाइल थे वो कहाँ किससे बात करती हैं, वो किससे शेयर करती हैं, चाहे वो अच्छा, बच्चों के मसले सही। मसाइल हों, हुँ। कोई फॉर्म्स फिल करने हों, या जो भी है डेली आप किसी ग्रोसरी लेने जा रहे हैं, आपको ये नहीं हुँ, पता हुँ, कि वो हुँ। हलाल इंग्रेडिएंट्स वाली है या नहीं है, हुँ, हुँ, किससे हुँ। सवाल करें, क्योंकि जर्मनों को बिल्कुल। आती नहीं है यूजुअली जो लेडीज हुँ, यहाँ पर आई हैं। तो फिर उस लिहाज से मतलब उनको काफी हेल्प मिली ऐसी खवातीनों को। तो ये हमारे लिए भी बहुत मतलब हुँ, अच्छा लगता था कि हुँ, उनको मतलब कोई मसला नहीं है, वो कोई भी पोस्ट कर देती हैं सवाल जो भी हुँ। उनके दिल में आ रहा है, चाहे वो 2 या 3 सवाल हों दिन में भी, वो कोई मसला नहीं है, लेकिन एटलीस्ट उनको हेल्प मिल रही है हर लिहाज से। अच्छा, मतलब यानी कि आपकी बात से मैं ये समझ रही हूँ कि हर किस्म की ख़वातीन, चाहे वो प्रोफ़ेशनली एक्टिव हों, नहीं हों, वो हाउसवाइफ्स हैं, वो सिंगल्स हैं, वो इस ग्रुप का हिस्सा हैं और मतलब वो जर्मनी में कहीं पे भी मुक़ीम हैं, वो बिल्कुल, पार्ट ऑफ द ग्रुप है। बिल्कुल।
अच्छा, ये बड़ी मुझे जो है ना एक अमेज़िंग भी बात है और मुझे इसको जान के इंटरेस्ट भी मतलब मैं ले रही हूँ इस चीज़ में और मुझे क्यूरियोसिटी हो रही है कि मैं आपसे ये बात पूछूँ कि एडवर्टाइज़मेंट आपने सिर्फ़ इस तरह की कि खातून को पता चला उन्होंने आगे बता दिया या कुछ ऐसे होता था क्या कोई आप एड्स चलाते थे या कुछ इस तरह के काम मतलब हुआ, कोई मार्केटिंग की स्ट्रैटेजीज़? नहीं, नहीं, हमारा शुरू से कभी इस तरह से रहा नहीं कि हम मतलब इसके पोस्टर छपवाएँ या कुछ इस तरह के काम हुँ, करें। मतलब मेनली यही था क्योंकि ग्रुप्स में हम ऐड भी उन्हीं ख़वातीनों को कर रहे थे जो रिकमेंडेशन की वज़ह से हमारे ग्रुप में आ रही हैं। क्योंकि हम अच्छा। काफ़ी तरीके से वेरीफ़ाई करके ही सिर्फ़ हुँ, लेडीज़ को ऐड कर रहे हैं। हमारा जेंट्स ग्रुप नहीं है। हमारे ग्रुप में कोई जेंट्स नहीं है। और यही हुँ, मेनली हमारा शुरू से मतलब रहा कि लेडीज़ को जर्मनी में होना लाज़मी है। लेडीज़ हुँ, जो भी है मतलब कोई भी लेडी है देसी जिसको मतलब अपने सब कॉन्टिनेंट कंट्री से रिलेटेड जो भी उनका है कनेक्शन वो आ सकती हैं बाकियों का कोई इसमें मतलब उनको कोई हेल्प नहीं मिल सकती मतलब अगर कोई प्योर जर्मन लेडी होगी उसको क्या हेल्प मिलेगी मतलब डेली लाइफ में हुँ, इस तरह से मतलब ये है कि आपकी एक कनेक्शन होती है हम सब खवातीन हुँ, हैं हम सब चाहे वो हम सब एक ज़बान नहीं बोल रही हैं, लेकिन क्योंकि हुँ, हमारी डेली लाइफ में कनेक्शंस इतने सारे हैं, हम हर चीज़ से, हर टॉपिक से रिलेट कर पाते हैं। और वो चीज़ बिल्कुल, मतलब बिल्कुल। हमें हमारी कनेक्शन उस चीज़ से बनी, चाहे वो खाने से रिलेटेड हो, चाहे वो हमारे डेली आपने कोई कपड़े खरीदने हैं या कुछ भी कोई हुँ, कौन-सी दुकान आपने यूज़ करनी है हुँ, या कोई डील्स चल रही हैं ऑनलाइन तो आप मतलब बहुत दफ़ा होता है कि ख़वातीन शेयर कर हुँ, देती हैं, भई मैंने देखा उस शॉप पे ये सेल लगी हुई है, हुँ, अगर किसी को लेना है वो ले ले या हुँ, मतलब कहाँ से कहाँ सवाल उठ रहे होते सही, हैं, लेकिन मैं कहती हूँ बिल्कुल। कि जवाब देने वाले मतलब फ़ौरन खड़े हो जाते हैं कि ये नहीं, ऐसे जवाब ही है है इस सवाल का। ये सही बात है और मतलब इस पे मैं दोबारा भी आपके पास आऊँगी बल्कि सिद्रा और अस्का को भी पूछूँगी क्योंकि मुझे भी थोड़ा-सा आइडिया है मैं देखती रहती हूँ कि जो डिफरेंट सेगमेंट्स चल रहे होते हैं और वो बड़े इंटरेस्टिंग होते हैं। उस पे हम बाद में आते हैं। पहले मैं सिद्रा से जानना चाहूँगी। सिद्रा आप क्योंकि आप एक देसी लर्न जर्मन आई थिंक चैनल भी रन कर रही हैं, जिसमें आप जर्मन सिखाती हैं देसी तरीके से और बहुत सारे आपके स्टूडेंट्स हैं। मुझे रात को ही पता चला कि हमारे चैनल के जो ओनर हैं प्यारा साहब, वो भी इनडायरेक्टली जो है ना वो आपके स्टूडेंट निकले हैं। तो ये मतलब आप देखें कि बेशक अभी आप वीडियो पे अपीयर नहीं हुई लेकिन बहुत सारे लोग जो है ना वो आपको वैसे ही जानते हैं बगैर इंटरव्यू के और बगैर मीडिया के आए हुए। मुझे बताएँ कि सिद्रा आप किस तरह से आरडीडी से मुंसलिक हैं और क्या किस चीज़ ने आपको मोटिवेट किया? आप तो ऑलरेडी अपना एक चैनल चला रही हैं, तो आपने ये क्यों सोचा कि मैं खाली खवातीन के ग्रुप में जो हूँ ना एक्टिव हूँ, उन्हें हेल्प करूँ? जबकि आपका जो यूट्यूब चैनल है वो तो फॉर ऑल है और वो तो मतलब पाकिस्तान में बैठे लोग भी उससे जर्मन सीख रहे हैं और कोई ज़रूरत नहीं है आपको ऐसे कि आप खवातीन के लिए स्पेशल करें कुछ। ऐसा क्या आपको मोटिवेशन मिली? जी बिल्कुल रुबाब, आपका सवाल बहुत अच्छा है। 2 साल पहले मैं आरडीडी का हिस्सा बनी और सानिया से मेरी टेक्स्टिंग पे बातचीत हुई और उन्होंने ऐसे मुझे बताया अपने ग्रुप के बारे में और जैसे ही मैं इस ग्रुप का हिस्सा बनी तो मुझे लगा कि ये ऐसा ग्रुप है कि इस जैसा मुझे और अपने मैं भी 5-6 साल से फेसबुक में हूँ। मुझे इस तरह का कोई ग्रुप जो कि इतना डाइवर्सिफाइड हो, इतने मुख्तलिफ ज़िंदगी के ज़ावियों पे बेस करती हुई उसमें बातें हों, सवालात हों और ये मतलब ये ऐसे नहीं है कि इस इंटरव्यू की वजह से मैं बात कर रही हूँ, लेकिन वैसे हुँ, भी मतलब एक दूसरे को सपोर्ट जिस तरह खवातीन कर रही हैं, दिस इज रियली कमेंडेबल। और जहां तक चैनल की बात रही तो इसका भी इस तरह से रोल है कि जब डॉयच am Dienstag वाला जो हमारा सेगमेंट है मंगल के मंगल हम पोस्ट करते हैं जर्मन लर्निंग के बारे में, चूंकि ज्यादातर खवातीन इस ग्रुप में जर्मनी में मुकीम हैं तो उनको फिर इस जुबान में जर्मन सिखाने के लिए उर्दू का सहारा लिया जाता है, तो वो मैं पोस्ट भी करती हूँ, वीडियोस के लिंक्स भी शेयर करती हूँ जो मुझे अच्छा लगे जर्मन लर्निंग से रिलेटेड। और आपको पता ही है कि जब भी हम किसी नए मुल्क में जाते हैं तो उसकी जुबान सीखना हमारी फोकियत होना चाहिए क्योंकि उसके बगैर हम सरवाइव नहीं कर सकते किसी भी सोसाइटी में जब हम फॉरेन किसी भी कंट्री में जाकर रहें। तो ये है या अच्छा, तो अभी तक आपके मतलब जो आरडीडी से हैं और खवातीन का कैसा रिस्पॉन्स आता है? कोई डायरेक्ट आपके बनी है स्टूडेंट्स और किस तरह मतलब उनके साथ आप इन टच हैं, नहीं हैं या सिर्फ़ जो आप ट्यूसडे को सेगमेंट रन करती हैं,
उस पे ही उनके साथ आपका इंटरेक्शन होता है। और दूसरा ये कि जो ट्यूसडे वाला आपका डुएचम बीन स्टाक वाला जो सेगमेंट है, उसको थोड़ा-सा और मज़ीद एलेबरेट करें, क्या आप लोग उस पे करते हैं? जी, जी। एक बात जो मैं पहले बताना भूल गई थी वो ये कि जब मैंने आरडीडी का हिस्सा बनकर देखा कि इतना ज़्यादा इस ग्रुप का फ़ायदा हो रहा है, तो फिर मैंने क्या किया कि अपने शहर में पहले जितनी मेरी पाकिस्तानी फ्रेंड्स थीं और इवन इंडियन भी, उनको मैंने टेक्स्ट किया, बताया कि इस ग्रुप को जॉइन करो, तुम लोगों को भी ज़रूर फ़ायदा होगा। उसके अलावा जो मेरी स्टूडेंट्स थीं जो कि जर्मनी आ गई थीं, उनको भी मैंने शेयर किया। मैंने कहा इफ आई एम पार्ट ऑफ दिस ग्रेट कम्युनिटी, आप लोग भी ज़रूर आओ, शामिल हो और इससे फ़ायदा लो, और इवन जिनको आपका फ़ायदा मिल सकता है उनको भी जवाब दे के, जैसे साइमा पहले बात कर रही थी कि हम गिव एंड टेक है ना, एक बंदे को मदद चाहिए, दूसरा बंदा अगर फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर रहा है तो इससे अच्छी क्या बात हो सकती है। तो जहां तक सेगमेंट की बात है तो उसमें पोस्ट्स वगैरह की जाती हैं, टास्क वगैरह, एमसीक्यूज वगैरह दिए जाते हैं, वीडियो लिंक्स शेयर किए जाते हैं किसी एक टॉपिक पर जो कि मुश्किल लगता हो स्टूडेंट्स को, तो वो ये है कि उनको देखकर थोड़ा सा आइडियाज क्लियर हो जाते हैं जर्मन ग्रामर के हवाले से, या कुछ एक्सरसाइजेस वगैरह कर दी जाती हैं। उसके अलावा एक रिसेंटली बहुत अच्छा हमारी मेंबर ने सेगमेंट स्टार्ट किया है इसी सेगमेंट से रिलेटेड, कि वो डिफरेंट एक टॉपिक ले लेती हैं और उस पर वोकैबुलरी की लिस्ट शेयर करती हैं, ताकि किसी भी एक मौजू के ऊपर अगर बाकी खवातीन को कोई हेल्प चाहिए, मिसाल के तौर पे फिगा शाइन लेने में हेल्प चाहिए या किसी भी एक फील्ड की रिलेटेड वोकैबुलरी वो शेयर करती हैं। तो इस तरह हम मिलकर सारा ये काम करते हैं और डिफरेंट दिनों में डिफरेंट सेगमेंट्स होते हैं, एंड दिस इज वन ऑफ देम। अच्छा, यानी कि इसमें हम ये चीज़ कर सकते हैं, मतलब डिड्यूस कर सकते हैं कि ख़वातीन के ग्रुप में एक्टिव होने का ये बेनिफिट है कि ख़वातीन ज़्यादा अच्छे तरीके से बिला झिझक जो है ना वो लैंग्वेज पे डिस्कशन कर सकती हैं और उसको लर्न कर सकती हैं। आप एक दूसरे से पूछेंगी तो उन्हें इतना प्रॉब्लम नहीं होता कि चलें यार सारी ख़वातीन सब एक जैसी हैं, किसी को नहीं भी आता तो कोई शेम नहीं करेगा। ये चीज़ ऐसे है, मतलब आपको लगता है कि ये चीज़ है? बिल्कुल, बिल्कुल। और इस तरह हम मतलब ख़वातीन होने का, और ये नहीं कि खाली लैंग्वेज से रिलेटेड, वैसे भी अगर पर्सनल हमारे इश्यूज कोई किसी किस्म के भी होते हैं तो वो भी हम बिला झिझक डिस्कस कर सकते हैं। हमें ये डर नहीं होता कि कोई मर्द हजरात इस पोस्ट को देख रहे होंगे तो हमें जज ना करें, तो इससे फायदा हो जाता यही है। ना, एग्जैक्टली, बिल्कुल एग्जैक्टली यही है। सही। अस्का, मैं अब आपकी तरफ आऊँगी कि आप जो है ना वो एक इंतहाई सेंसिटिव जो टॉपिक है उस पे काम कर रही हैं, प्रैक्टिकली भी कर रही हैं, सोशल मीडिया पे भी अवेयरनेस उसके हवाले से वक्त देती रहती हैं। मुझे बताएं कि जब आपने ये चीज़ जो शुरू की है डोमेस्टिक अब्यूज़ पे, क्या ये आरडीडी ज्वाइन करने से पहले की थी या बाद में की है? और आरडीडी में आपको इसका कैसा रिस्पॉन्स आता है? आपको लगता है कि यहाँ पे विक्टिम्स हैं और मतलब ये चीज़ यहाँ पे ज़रूरत है, और फीमेल के ग्रुप होने का ये फ़ायदा होता है कि विक्टिम्स ज़्यादा इजीली जो है वो डिस्कशन कर सकते हैं, बेशक एनोनिमस ही हो, लेकिन उसमें उनको कंफर्टेबल, उनका मतलब कंफर्ट लेवल एक मेंटेन रहता है। जी रुबाब, आपने बड़ा अच्छा सवाल किया। ये सेगमेंट हमने अभी आरडीडी में रिसेंटली स्टार्ट किया है, और इसका क्रेडिट मैं आरडीडी को और आरडीडी के एडमिन्स को देती हूँ, क्योंकि ये इस ग्रुप में हमने नोटिस किया कि ख़वातीन बहुत कंफर्टेबल फील करती हैं अपने मसाइल शेयर करने में, क्योंकि उन्हें पता है कि यहाँ पे दूसरी ख़वातीन हैं जो उनके इन मसाइल को समझ सकती हैं। और पोस्ट वो करती हैं, एनोनिमस भी करती हैं। अब कुछ ऐसी डेयरी ख़वातीन भी हैं जो माशाल्लाह खुल के भी पोस्ट कर लेती हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि यहाँ से हेल्प मिलेगी, जजमेंट नहीं मिलेगी, तो और दूसरी ख़वातीन उनको समझेंगी। तो ये सिलसिला ऐसे शुरू हुआ कि आरडीडी में कुछ इस तरह की डोमेस्टिक वायलेंस की पोस्ट काफ़ी ज़्यादा आने लगी पिछले दिनों में। तो तब एडमिन्स ने मिलकर ये डिसाइड किया कि हम एक ऐसा ग्रुप इनिशिएट करें, एक स्मॉल ग्रुप के जिसमें हम डायरेक्टली इस तरह की ख़वातीन को फौरी तौर पर हेल्प कर सकें जिन्हें हेल्प की ज़रूरत है। क्योंकि होता ऐसा है कि जो खातून डोमेस्टिक वायलेंस का शिकार हो रही होती है, वो उसके ऊपर इतना ज़्यादा प्रेशर आ रहा होता है कि उसको उस वक्त में, चाहे वो कुछ इन्फॉर्मेशन हो या ना हो, वो समझ नहीं पा रही होती कि उसके साथ क्या हो रहा है और ऐसा क्यों हो रहा है और उसे आगे क्या करना है। तो इस ग्रुप का मकसद, इस प्रोजेक्ट को इनिशिएट करने का मकसद सिर्फ ये है कि उनको एक फौरी हेल्प मुहैया की जा सके कि आप अपने मसाइल जिस तरह के भी हैं, ज़रूरी नहीं कि सिर्फ डोमेस्टिक वायलेंस ही हो, अगर सिर्फ वैसे भी आप परेशान हैं, घबराई हुई हैं, अगर आप किसी सिचुएशन को हैंडल नहीं कर पा रही हैं, तो आप ग्रुप में पोस्ट करें, या एडमिन्स, अगर आप ग्रुप में पोस्ट करने में कंफर्टेबल नहीं है तो आप एडमिन से कांटेक्ट करें या मेरे से रब्ता करें, ताकि हम उसको
ایک اس طرح کے ریلیٹڈ پرسن کے ساتھ ہم ڈائریکٹ کانٹیکٹ کروا سکیں جو ان کی ہیلپ کر سکیں فوری طور پر. بعض اوقات کچھ مسائل ایسے ہوتے ہیں کہ جو صرف سن لینے سے بھی حل ہو جاتے ہیں. تو یہ ہمارا گولڈن ہارٹ لسنرز گروپ کا مقصد ہے. اچھا, جو گولڈن ہارٹ لسنرز گروپ ہے, ایک تو نام بڑا اچھا اور اٹریکٹیو سا ہے, اور یہ بڑی اچھی چیز ہے کیونکہ اوبویسلی اگر آپ والیٹرلی کسی اپنا ٹائم نکال کے کسی کو سن رہے ہیں تو واقعی میں آپ کے پاس گولڈن ہارٹ ہے تو آپ سن رہے ہیں, ورنہ عام تو آج کل لوگ ٹائم دیتے ہوئے بہت زیادہ جو ہے نا وہ گھبراتے ہیں, ڈرتے ہیں, اور دیتے بھی خیر نہیں ہیں. مجھے بتائیں کہ آپ اس سیگمنٹ کو لیڈ کر رہی ہیں. جی. اچھا, اور کتنے آپ لوگ آپ کے پاس ٹیم میں ممبرز ہیں جو ہمارے پاس اس وقت میری ٹیم میں اس وقت 6 سے 7 خواتین ہیں, لیکن ایسا نہیں ہے کہ صرف یہ 6 سے 7 خواتین ہی ہیلپ کرتی ہیں. اس گروپ کی ہر خاتون ہیلپ کرنے میں بہت آگے سے آگے ہوتی ہے. تو اگر کچھ ایسا مسئلہ ہو جو ان 6-7 خواتین سے نہ حل ہو رہا ہو تو ہم گروپ میں بھی پوسٹ کرتے ہیں, اور وہاں سے بھی ہمیشہ بہت ہی ہیلپ مل جاتی ہے. صحیح. اچھا, اس کا آپ نے کہا کہ 6-7 خواتین ہیں اور وہ ہیلپ پرووائڈ کرتی ہیں. مجھے تھوڑا سا اس پہ کلیئر کریں کہ کیا جو خواتین ہیں وہ کس قسم کی ہیلپ پرووائڈ کرتی ہیں, اور کیا وہ پروفیشنل ہے؟ فار ایگزامپل اگر ڈومیسٹک ابیوز سے حوالے سے ہم دیکھیں جو کہ آپ کا فیلڈ بھی ہے, تو کیا آپ کے پاس وہاں پر سائیکالوجسٹ ہیں, کیا لائرز ہیں, مطلب وہ فیلڈ سے ریلیٹڈ ہوتے ہیں جو ہیلپ پرووائڈ کرتے ہیں, یا ایک ایسا ہے کہ جنرلی آپ لوگ کاؤنسلنگ سروسز پرووائڈ کر رہے ہیں کہ آپ انہیں کاؤنسل کرتے ہیں انیشیلی کہ ان کا سارٹ آؤٹ کر لیا, اچھا جی آپ نے فار ایگزامپل ڈومیسٹک ابیوز کا کیس آیا ہے اور جی اچھا آپ کو یہ والی ہیلپ چاہیے تو آپ کو ہم لائر کی طرف ریفر کریں گے, یا اگر آپ کو سائیکولوجیکل ہیلپ چاہیے تو ہم آپ کو سائیکالوجسٹ کی طرف ریفر کریں گے, یا آپ انہیں آپ کی ٹیم میں سائیکالوجسٹ اور لائرز اٹ سیلف ہیں؟ جی آپ یہ بھی اچھا سوال ہے. نہیں, یہ بیسیکلی یہ کنیکشن کے لیے ہے. تو دیکھا یہ جاتا ہے کہ کیا جو مسئلہ ہے کیا وہ ہم اپنے طور پر سالو کر سکتے ہیں, اور اگر وہ ہم اپنے طور پر سالو نہیں کر سکتے تو پھر ہم ان کو ریفر کرتے ہیں سائیکالوجسٹ کی طرف یا پھر لائرز کی طرف, اور ان کو فوری کانٹیکٹس پرووائڈ کیے جاتے ہیں. کیونکہ ہمارے یہاں کافی خواتین ایسی ہیں جن کو جرمن نہیں آتی, جن کو شاید انگلش بھی نہیں آتی, تو ہم نے اپنے کنیکشنز میں اس طرح کے سائیکالوجسٹ یا اس طرح کے لائرز ہیں ہمارے جو اردو میں ڈیل کر سکتے ہیں, تو ہم ان کے ساتھ کنیکٹ کر دیتے ہیں. صحیح ہوگا. اچھا, میرا نیکسٹ کوشچن جو ہے وہ آپ تینوں کے لیے ہوگا, لیکن اوبویسلی میں سائمہ سے اسٹارٹ کروں گی. سائمہ, جب آپ نے یہ گروپ بنایا اور آپ نے کہا کہ جس طرح سے آپ نے ہمیں بتایا کہ ماشاء اللہ اس نے اتنا گرو کیا ہے اوور دی ایئرس, اس میں کیا آپ کو کبھی اوبویسلی ہرڈلس تو آتے ہیں, لیکن کس قسم کے ہرڈلز آئے, اور کیا کبھی آپ کو یہ چیز سننے کو ملی کہ یار خالی خواتین کیوں, مردوں کے ساتھ مطلب کیوں نہیں آپ وہ کر سکتی, یا اس طرح کی کوئی چیزیں جو کہ آپ کو لگے کہ یار یہ ڈی موٹیویٹنگ ہے, وہ اس پہ ذرا ہمیں بتائیں کہ کیسے آپ نے اسے کوپ اپ کیا؟ ویسے اللہ کا شکر ہے واقعی کہ ہمیں کبھی بھی ایسی بڑی پرابلمز نہیں آئیں اس گروپ کو چلانے میں. مین اس میں یہی میرا ثانیہ کا ہمیشہ سے یہی مقصد رہا کہ اس کو اسٹرکچر کے ساتھ چلائیں, کیونکہ ثانیہ کی سوچ بھی میرے سے ملتی ہے. مجھے لگتا ہے ہم لوگ اسی لیے اتنا کمپلیمنٹ کر پا رہے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ یہ نئے آئیڈیاز نکالنے میں, چاہے پروجیکٹس بنانے میں, کیونکہ ہم دونوں کافی مطلب آرگنائز طریقے سے اسٹرکچر سے ایک سسٹم کو لے کے ہم چلنا چاہ رہے ہوتے ہیں. ہم جو بھی پروجیکٹس نئے بناتے ہیں, یا جیسے ہمارے سسٹر گروپس بنے, سیگمنٹس جو ہمارے بنے, جو ہم لوگوں نے پھر سیگمنٹ ہولڈرز بنائے, یا سسٹر گروپس کے جو ایڈمنس ہم لوگوں نے بنائے, وہ ہمیشہ ہم لوگوں کے سوچ کے مطابق وہ لوگ بھی چلنا پسند کیا ان لوگوں نے. تو جو وقت کے ساتھ ساتھ میں کہوں گی ہمیں مطلب پریشانیاں نہیں آئیں, بلکہ پازیٹیو فیڈ بیک ہی آیا ہے. اور پازیٹیوٹی ہم لوگوں کا مطلب ایک مین چیز تھی, مین رول تھا, جس کو ہم لوگوں نے ہمیشہ کوشش کی کہ اسی کو قائم رکھیں. آئی گیس پرابلم میں کہوں گی بیک گراؤنڈ پرابلم جو رہی کہ مردوں نے ہمیشہ کوشش کی اس گروپ میں ایڈ ہونے کی, وہ ہمارا مین پرابلم رہا. لیکن میں کہتی ہوں کہ ہمارا مقصد شروع سے یہی تھا کہ ہم ایک محفوظ جگہ دینا چاہ رہے تھے لیڈیز کو,
जहाँ वो बिना झिझक अपनी कोई भी बात शेयर करें और उनको ये मसला ना हो कि उसमें कोई मर्द पढ़ रहा है उस चीज को, क्योंकि अक्सर यही होता है कि काफी ऐसी चीजें होती हैं, चाहे वो औरतों की हेल्थ से रिलेटेड कोई टॉपिक है, चाहे बच्चों से रिलेटेड टॉपिक है, खाने से रिलेटेड कोई भी चीज है, मतलब काफी चीजें होती हैं जो औरतें आपस में ही डिस्कस करना पसंद करेंगी, बजाय कि उनको कोई मतलब ओपिनियन कोई मर्द हजरात दें, क्योंकि मर्दों की जो सोच है कुछ चीजों में थोड़ी अलग होती है, और वो लोग जवाब देने में मतलब वो उनका जवाब थोड़ा सा मैं कहूंगी सरसरी सा होता है, मतलब ऊपर ऊपर से वो जवाब देना पसंद करते हैं। डेप्थ में जाना मुझे लगता है हर औरत का काम नहीं है, लेकिन मेजोरिटी जो हमारे यहाँ ग्रुप में है औरतें, वो कोशिश कर रही होती हैं कि काफी मतलब डिटेल में जवाब दें। हमारे पास जैसे सेगमेंट्स हैं जिसमें हम डॉक्टर्स के साथ मिलके लाइव टॉक करते हैं, तो उसमें भी ये होता है कि लेडीज हमें ऑन पब्लिक डिमांड पता चल जाती है कि इस वक्त जैसे सीजनल फ्लू का कोई मसला है, स्किन इश्यूज का है, एलर्जीज का है, तो उसी पे हम लाइव टॉपिक्स रखते हैं, लाइव टॉक होती है। हमारी डॉक्टर तस्नीम हमारे साथ हैं, तो वो उस चीज पे मतलब लेडीज की मदद कर रही होती हैं, और बिजनेस लेडीज हैं, उनके काफी हाँ मसले जी, मसाइल तो हैं। मैं सही समझ वो मैं आपके पास ना सेगमेंट्स और सिस्टर ग्रुप्स वाले में इस पे बिल्कुल। आऊंगी, ताकि उस पे भी आप हमें एलेबरेट करें। सिद्रा, इन्होंने साइमा ने कहा और मैं उसी को कंटिन्यू आपसे करूंगी, क्योंकि आपने भी पहले ये बात कही कि जो मर्दों के रिस्पॉन्सेज हैं बकौल साइमा के वो सरसरी सरसरी से होते हैं। फिर आपने एक बात की थी कि अमूमन औरतें जब औरतों के ग्रुप में ये इस चीज़ से आज़ाद होती हैं कि यार हमें कोई शेम करेगा या मर्द जो है वो हमें कोई बात सुना सकता है, तो कुछ आपकी इस तरह की इंटरेक्शंस रही हैं या आपने कुछ विटनेस इस तरह किया है जो ग्रुप्स म्यूचुअल हैं कि उसमें खवातीन इतनी कंफर्टेबल नहीं हैं या उनके ओपिनियन को उस तरह से रिगार्ड नहीं किया जा रहा जिस तरह से आरडीडी में किया जाता है? क्या आपका ऐसा कोई एक्सपीरियंस है या कोई चीज़ आपके सामने आया हो, या बीइंग अ टीचर आपने ऑब्जर्व किया हो कि यार लड़कियों के और लड़कों के जो रिस्पॉन्सेज हैं वो डिफरेंट हैं, तो लड़कियां ज़्यादा कंफर्टेबल होंगी इन वीमेन ओनली ग्रुप? जी, जी। सोशल मीडिया पे मेरी जो प्रेज़ेंस है, जैसे मैं बता रही थी कि पिछले 6-7 साल से है, और मैं डिफरेंट फ़ोरम्स पे एक्टिव हूँ, स्पेशली फ़ेसबुक पे। और जो ग्रुप्स हैं, काफ़ी सारे पाकिस्तानी ग्रुप्स जो जर्मनी में हैं, स्टूडेंट ग्रुप्स हो गए, जो पीएसएस होते हैं डिफरेंट सिटीज़ के, उसके हो गए, या वैसे काफ़ी कुछ फ़ेमस ग्रुप्स हैं, जिसमें काफ़ी ठीक-ठाक देसी आबादी पाई जाती है फ़ेसबुक पे। तो जहाँ तक बात की जाए आरडे डे के उन ग्रुप से डिफरेंट होने की, तो एक ये चीज़, क्योंकि मैं खुद भी अपना फेसबुक ग्रुप भी चलाती हूँ, तो मुझे पता है कि जो रूल्स और गाइडलाइंस बनाए होते हैं हम लोगों ने, एडमिन्स ने, तो वो चीज़ बहुत मैटर करती है कि एक ग्रुप लॉन्गर रन में कितना उन रूल्स पर फॉलो करता है, कितना स्ट्रिक्ट बैलेंस काइंड ऑफ रखता है कि ऐसी कोई एक्टिविटी ना हो जो कि किसी दूसरे बंदे को अनकंफर्टेबल फील कराए। तो ये चीज़ भी आरडे के डिफरेंट है और अच्छी है कि जो प्रिंसिपल्स की बुनियाद पर साइमा और शगुफ्ता ने ये ग्रुप बनाया था और उसको वो लेकर आगे चल रही हैं, they don't compromise on these principles, and that I find really good, क्योंकि कुछ और ग्रुप्स हैं जिनमें कोई चेक एंड बैलेंस नहीं होता, उसमें एक दूसरे का काइंड ऑफ, अगर एज इन आपको पता ही है कि मीम्स बनाना या जोक्स क्रैक करना, जस्ट बात बराए बात करना, वो चीज इस ग्रुप में मुझे मिनिमल, बहुत कम मिली है, और वो भी जब मिलती भी है तो फिर उसको कंट्रोल किया जाता है एट द स्पॉट ना, काइंड ऑफ विद इन फ्यू आवर्स, लाइक दे मेक श्योर कि कोई भी ना बंदा फील करे कि एलियनेटेड ना फील करे, या किसी एक पर अटैक हो रहा है। पता है साइबर बुलिंग और जो मॉब अटैक्स हैं, ये भी आजकल बहुत इन टॉपिक हैं, और ये चीज जो है डिफरेंट बनाती है आरडे को। और अगेन पर्सनल इश्यूज औरतों के बारहा बहुत सारे होते हैं, और उस पर कंफर्टेबल बंदा तभी फील करता है जब अपनी सिस्टर ग्रुप्स में बंदा पार्टिसिपेट करता है, और विदाउट एनी हेजिटेशन वो कुछ भी पोस्ट हम लोग कर सकते हैं, और फिर रिस्पॉन्ड करने वाले भी हेल्पिंग हैंड्स ही होते हैं, बजाय ये कि हम बस बात बराए बात कर दें या इस तरह कुछ। तो ये चीज डिफरेंट है कि अपने रूट्स से कितना इन टच बंदा रहे ना। दिस रियली सेपरेट्स दिस ग्रुप फ्रॉम अदर ग्रुप्स। सही। थैंक यू सिद्रा फॉर दिस कॉम्प्रिहेंसिव आंसर। अस्का, मैं आपकी तरफ आऊंगी और इसको थोड़ा सा जो है ना वो साइबा की ही बात, एक और बात को जो है ना वो आपके क्वेश्चन साथ नहीं करूंगी। साइमा ने कहा कि मर्द जो हैं वो उनको ये एक हर्डल रहा कि मर्द जो हैं वो इंटर होना चाहते हैं ग्रुप में।
आपको लगता है कि इस वजह से कि वहाँ पे ये चीज़ वो देखती है, मतलब जानना चाहते हुए कि ऐसा क्या हो रहा है पर्टिकुलरली इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस, ऐसा होता है? आपको लगेगा कि यार अगर खवातीन शेयर कर रही हैं तो उनके मियाँ ज़रूर सोचते होंगे कि यार आरडीडी में जाके देखें कि ऐसा क्या है जो मतलब इधर हो रहा है और फिर हमारी बेगम की सोच चेंज हो रही है, या ये इधर शेयर कर रही है तो कुछ ना कुछ है। आपको लगता है कि इसके पीछे ये चीज़ होगी, या सिदरा वाली बात कि ये सिर्फ बुली करने के लिए या मीम्स बनाने के लिए जो है ना वो मर्द कहते हैं चलो जी घुस जाओ खवातीन के ग्रुप में? इसके पीछे काफ़ी सोच हो सकती है। ये वाली सोच भी हो सकती है कि वो ये देखना चाहते हैं कि आखिर इस ग्रुप में ऐसा चल क्या रहा है, क्योंकि ये बहुत रिस्ट्रिक्टेड ग्रुप है। और कुछ ऐसे भी होते हैं कि वो अपनी बेगमात से बहुत तारीफ़ें सुनते हैं ग्रुप की, तो उनको शायद क्यूरियोसिटी होती होगी कि हम देखें तो सही कि क्या चल रहा है यहाँ पे, क्या और चीज़ है? हम भी पार्टिसिपेट करें। लेकिन बड़ा क्रेडिट है एडमिन्स को कि ये बड़ा ख्याल रखती हैं कि इस तरह से कोई मर्द हाथ अंदर ना आए, क्योंकि होता यह है कि खवातीन अगर खुल के बात शेयर करना चाहती हैं इस ग्रुप में, और अगर कोई मेल मेंबर आ जाता है और वो उनके अब कोई दोस्त हैं, उनके आगे से दोस्त हैं, तो शायद कोई बुलिंग फैक्टर भी बीच में आता है। अक्सर इस तरह से देखा जाता है कि खवातीन की पोस्ट का मजाक उड़ाया जा रहा होता है कि ये ऐसा सोच रही है, ये अच्छा ये तो ऐसी बंदी है, क्योंकि मैं मर्दों को बुरा नहीं कह रही, 5 उंगलियां बराबर नहीं होती, लेकिन कुछ ऐसे होते भी हैं जो इस तरह के काम करते हैं, तो उसको अवॉइड करने के लिए एक फीमेल फ्रेंडली ग्रुप बहुत ज़रूरी है, और आरडीडी इसमें बड़ा अच्छा रोल अदा कर रहा है। बिल्कुल सही, बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा अस्का, मुझे एक और बात बताएं, क्योंकि आप डोमेस्टिक वायलेंस पे काम कर रही हैं और इसका ये कि बड़ा सेंसिटिव इशू है, जैसे मैंने पहले भी कहा, और बहुत ज़्यादा जो है वो एक अनफॉर्चुनेटली एग्जिस्ट भी करते हैं, ठीक है, जर्मन कम्युनिटी में, पर्टिकुलरली पाकिस्तानी हाउस होल्ड्स में। मुझे बताएं कि कभी आपको जिन खवातीन के साथ आप डील कर रही होती हैं उनके हस्बैंड्स की तरफ से कोई मैसेजेस, कोई प्रेशर, कोई ब्लैकमेलिंग टैक्टिक्स फेस करना पड़े, या कोई ऐसी बातें और कहीं से सुनने को मिले कि यार ये तुम जो काम कर रही हो ये ठीक नहीं है, या हम इसका जरूर जवाब देंगे, या इस तरह करके ये कुछ होता है? क्योंकि मैं अपने मतलब क्वेश्चन को थोड़ा सा एलिब्रेट करती हूँ कि जो हम जैसे मैं शो भी करती हूँ ज़ुबैर साहब के साथ डोमेस्टिक अब्यूज़ पे, या जो लॉयर्स काम कर रहे हैं उनके जब हम एक्सपीरियंसेस सुनते हैं तो अमूमन ऐसे होता है कि पाकिस्तानी सोसाइटी हमारे कल्चरल कॉन्टेक्स्ट में ना एक प्रेशर एक्सर्ट करती है खातून पे कि आपने मतलब ये अगेंस्ट द नॉर्म्स हैं और इस तरह है, तो ये चीज़ छोड़ो, बस चुप रहो, सब्र करो। तो आपको इस तरह कुछ आता है मेल मेंबर्स से, हस्बैंड से? अभी तक तो ऐसा नहीं कुछ आया, लेकिन कोई पता नहीं जब लेकिन ऐसा भी है कि हमारे यहाँ आइडेंटिटीज इतनी शेयर नहीं की जाती, तो ऐसा नहीं होता कि अगर हम किसी खातून की हेल्प कर रहे हैं तो बेसिकली अभी तक तो हम इतना पर्दे से बाहर नहीं आए, शायद इस वीडियो के बाद आ गए हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, और जर्मनी में होते हुए बेसिकली इतना ज़्यादा कोई कर भी नहीं सकता, क्योंकि हमारे बैकअप में हमारे पास लॉयर्स भी हैं, और किसी की हिम्मत, साइबर बुलिंग भी यहाँ पर एक बहुत बड़ा क्राइम है, तो अगर कोई ऐसा करने की कोशिश करेगा तो उसको फिर देख लेंगे। सही यार, मुझे ये जवाब पसंद आया है कि आप यू नो अबाउट योर राइट्स, और आप जो है ना वो बिल्कुल नडर हैं इस मामले में, और वेरी गुड, ऐसे ही होना चाहिए। मैं साइमा फिर आपकी तरफ आऊँगी, और अब मैं चाहूँगी कि आप हमें थोड़ा सा बताएं कि आपके कौन से सिस्टर ग्रुप्स जो है ना वो वर्क कर रहे हैं, और वाई सिस्टर ग्रुप्स, क्यों ये आइडिया आया कि यार डिफरेंट ग्रुप्स बनाते हैं और वो डिफरेंट चीज़ों के साथ डील करेंगे, मतलब इसके पीछे क्या लॉजिक है? एक ग्रुप में नहीं मैनेज हो पा रहा था, या और क्या उन सिस्टर ग्रुप्स के एडमिन्स भी डिफरेंट हैं, उन पे आप चेक एंड बैलेंस रखते हैं, या एक कॉमन स्ट्रेटजीज बना दी गई हैं उनके तहत चलते हैं? हमारा मेन मकसद जो था ये सिस्टर ग्रुप्स बनाने का, वो शुरू में इस तरह से स्टार्ट हुआ कि आरडीडी मेनली मतलब ना तो सिर्फ पाकिस्तानियों का ग्रुप है, ना सिर्फ मुसलमानों का ग्रुप है। हमारे पास हमारे मेंबर्स जो हैं वो हिंदू भी हैं, क्रिश्चियंस भी हैं, सिख भी हैं, पता नहीं कहाँ के, मतलब
हमें नहीं पता, हमारे पास सभी हैं एक तरह से, इसीलिए वो हमारा देसी ग्रुप बना है। और हम नहीं चाह रहे थे कि RDD itself जो हमारा मेन ग्रुप है उसमें हम पॉलिटिकल क्वेश्चंस आए जिसकी वजह से मिसअंडरस्टैंडिंग्स स्टार्ट हो सकती हैं। हम नहीं चाह रहे थे कि उसमें सिर्फ इस्लाम से रिलेटेड कोई क्वेश्चंस आए। रमजान आते हैं, रमजान से रिलेटेड काफी क्वेश्चंस होते हैं या कुछ भी होता है, हम चाह रहे थे इस चीज को थोड़ा सेपरेट रखें ताकि कोई उसमें उस ग्रुप में मेन ग्रुप में कोई पॉलिटिकल या इस्लामिक रुख ना ले वो ग्रुप, और उसकी पहचान मतलब ये हो जाए कि ये मुसलमानों का ग्रुप है या ये सिर्फ पाकिस्तानियों का ग्रुप है या ये कोई पॉलिटिकल पार्टी का ग्रुप है। तो इससे हट के हम चाह रहे थे इस चीज को थोड़ा सेपरेट रखें, तो उससे फिर ये दीन दुनिया का ग्रुप बना। शुरू में उस चीज को हम लोगों ने कोशिश की खुद चलाने की, लेकिन क्योंकि वो उसमें भी मतलब इतने माशाल्लाह से काफी जल्दी वो ग्रुप भी एक्टिव बन गया। उसमें हम लोगों ने जैसे रमजानों में काफी अच्छे सेशंस हुए, उसमें इज्तिमाई दुआएं हुई, कुरान से रिलेटेड काफी चीजें हुई। तो हमने कहा कि इस चीज के लिए भी फौरी तौर पे हमें एडमिन्स की जरूरत है। तो हमने जैसे ही पूछा, हमें मतलब माशाल्लाह से 2 एडमिन्स मिले, एक फायजा है, एक सनम है, वो हमारी एडमिन्स हैं उस ग्रुप की, और एक समरीन है वो मॉडरेटर है। उसको भी हम बाद में लेके आए क्योंकि हमें लगा कि नहीं 2 भी कम पड़ रहे हैं तो तीसरी को भी साथ रखें। तो ऐसे RDD दीन दुनिया ग्रुप सिस्टर ग्रुप हमारा बना, जो मतलब काफी एक तरह से इम्पोर्टेंट हो गया हम लोगों के लिए। एक जो और भी इम्पोर्टेंट ग्रुप बना हमारा सिस्टर ग्रुप का, वो है NDD नोहमल्देसी डॉइचलैंड। तो वो भी इसलिए बना कि हम नहीं चाह रहे थे कि मेन ग्रुप में चीजें मतलब बिजनेस लेडीज अपनी चीजें बेचें, क्योंकि फिर वो सेलिंग ग्रुप बन जाता। उस चीज को भी सेपरेट रखने के लिए हमने फिर NDD बनाया, जिसमें सुनीला हमारी एडमिन है, और उसने भी माशाल्लाह इतने अच्छा काम कर रही है कि उसमें हमारे पास काफी बिजनेस लेडीज हैं, जिसमें आपको अगर अचानक कोई शलवार कमीज चाहिए, साड़ियां चाहिए, कुछ भी चाहिए, इंडियन लेडीज हैं उसमें जो सेल कर रही हैं, तो ऑन डिमांड भी आपको मिल जाती हैं चीजें। ऑन मतलब ऑर्डर कर सकते हैं आप सामान को, या सीजनल आपको दिवाली पे सामान मिल जाएगा आपको, किसी भी ईद बकरीद पे कोई भी मौका, शादी का मौका है, मेहंदी का सामान की जरूरत है आपको, तो वो सब चीजें आपको NDD में मिलेंगी। तो वहाँ पर बायर्स भी हैं, सेलर्स भी हैं, और मैं कहती हूँ जो मेन हमारा ग्रुप इस वजह से भी मतलब लोग आगे पहुंचा रहे होते हैं उस चीज को कि RDD को आप इसलिए मतलब कंसिडर करें उसको ज्वाइन करने के लिए, क्योंकि हम जैसे चाह रहे होते हैं कि रिकमेंडेशन का ग्रुप है कि लोग अपनी सक्सेस स्टोरीज भी उसमें डालें कि हमने ये फला फला बंदी से खरीदा, बहुत अच्छा गया, या हमने ये मदद मांगी तो ये खास बंदी थी इस ग्रुप की जिसने हमारी मदद की। तो मतलब ऐसी हमारी करते करते इतनी सक्सेस स्टोरीज बन गई कि ये भी एक तरह से एक्सक्लूसिव बन गया, क्यों जो कि बाकी लेडी मतलब बाकी ग्रुप्स में ये सब चीजें इस तरह से नहीं है। जैसे हम लोगों ने मतलब उसूल पे चले, स्ट्रक्चर से चले, सिस्टम से चले, तो यहाँ तक पहुंचे। सही। शायद मैं थोड़ा सा सेगमेंट्स को भी बताएं, मैं चाहती हूँ शॉर्टली आप बता दें। जैसे आप पहले कह रही थी कि हेल्थ रिलेटेड है, या और कौन कौन से सेगमेंट्स हैं और उन्हें कौन कौन डील कर रहा है, क्योंकि डॉक्टर तस्लीम का आपने नाम लिया, माशाल्लाह वो काफ़ी एक्टिव है कम्युनिटी में। ज़्यादातर तो मैंने उन्हें RDD में ही एक्टिव देखा, लाइव सेशंस लेते हुए, उधर से ही मैं भी उनको जान पाई हूँ। तो वो मतलब और कौन कौन ऐसे है, कौन कौन से सेगमेंट्स चल रहे हैं आपके? हमारे सेगमेंट्स तो माशाल्लाह काफ़ी हैं, लेकिन एक मतलब जो मैं कहूँगी जो सबसे ज़्यादा पॉपुलर हमारे सेगमेंट्स जो है मंडे वाले दिन है मैट्रिमोनियल मंडे, जिसमें प्रपोजल्स दिए जाते हैं, चाहे वो मर्द के हों औरत के हों। लेकिन हम चाह रहे होते हैं कि लोग जो ये प्रपोजल्स डाल रहे हैं वो मतलब पूछ के डालें, जिस बंदे के डाल रहे हैं या जिस बंदी के डाल रहे हैं, और उसके ज़रिए भी माशाल्लाह से कुछ रिश्ते हुए हैं RDD के थ्रू। और हमारे जैसे है हमने बिजनेस प्रमोशन डेज रखे हुए 2 दफा हफ्ते में, उसमें लोग फिर अपने खाने के अलावा भी मतलब अपनी चीजें जैसे बेच सकते हैं। हमारे पास काफी बिजनेस लेडीज हैं जो अपने अपने बिजनेस चला रही हैं, चाहे वो स्टील में हो या हार्डवेयर में हो, कुछ भी हो, मतलब काफी मतलब रेंज बहुत अलग है। काफी हर फील्ड से कोई ना कोई लेडी है जो अपने बिजनेस चला रही है, तो वो अपनी बिजनेस प्रमोशन कर सकती है। फिर हमारा फूडीज फ्राइडे काफी पॉपुलर
चला गया है कि उसमें सारी लेडीज अपनी जो पूरी वीकली मेन्यूज जो पकाती हैं उसको शो करती हैं, अपनी पिक्चर सेव कर लेती हैं फ्राइडेज के लिए खास तौर से, तो वो काफी हमारा पॉपुलर सेगमेंट बन चुका है। मतलब इस तरह से कुछ ना कुछ चलता रहता है। थिंक नेचुरल थर्सडे भी बहुत अच्छा है, वो यास्मीन चला रही है सेगमेंट, तो वो उसमें होता है, वो गार्डनिंग के टिप्स मिलते हैं आपको। अगर आपको कोई भी कुछ पूछना है गार्डनिंग से रिलेटेड तो आप उस यास्मीन से पूछ सकते हैं, या वैसे ही आप जनरली उस दिन पूछ लें। ब्यूटी मेकअप ये भी थर्सडे को है, तो आप उसमें मतलब हमारे पास काफी ब्लॉगर्स हैं जो ब्यूटी से रिलेटेड कोई भी मेकअप क्वेश्चंस डाल देते हैं, खवातीन का मजे रहते हैं। और सारी का फेवरेट टॉपिक है। बिल्कुल। और सिद्रा हमारे ट्यूसडे वाला दिन चला रही हैं, जो उन्होंने अभी बताया था, जर्मन का डॉयच एम dienstag, तो वो भी काफी पॉपुलर है, क्योंकि और काफी जगहों पे आपको इतनी हिम्मत नहीं बनती है जर्मन में, मतलब जर्मन से रिलेटेड कोई सवाल करने की, तो आप सिद्रा से कभी भी पूछ सकते हैं कि ये भाई ये समझ में नहीं आ रहा है। ये अक्सर लेडीज अपने फॉर्म अपलोड कर देती हैं, कहती हैं कि हमें समझ में नहीं आ रहा है, इसको कैसे फिल करना है, तो उसके वो जवाब मिल जाते हैं। अच्छा, माशाल्लाह, ये तो ये अच्छी हेल्प है, क्योंकि और कहीं से भी इस तरह ना कोई भी फ्री हेल्प नहीं दे रहा होता कि वो हर छोटी छोटी चीज़ को गाइड उस पर कर दे और जर्मन में उसको फिल कर दे। माशाल्लाह, ये आपका बहुत अच्छा काम है और नेक काम है यकीनन। सजा, मुझे बताएं, जैसे ये नोखमाल देसी डोइचलैंड जो है जी, ये वीमेन, जहाँ तक मैं अंडरस्टैंड कर पाई हूँ, ज़्यादातर इकोनॉमिक एक्टिविटी से रिलेटेड है। तो इसका क्या आपने कभी कुछ खरीदा है यहाँ से, कुछ देसी, या आपके आसपास वालों ने खरीदा हो है, और कैसा उनका एक्सपीरियंस है? और ये बताएं कि किस तरह से ये इकोनॉमिकली जो है ना वो इकोनॉमिक टर्म्स में खवातीन को हेल्प कर रहा है, स्पेशली सेलर्स को। जी, ये जो है खरीदा मैंने रिसेंटली, तो अपना बैच खरीदा है आरडे लेडी का बैच खरीदा है, लेकिन वैसे पर्सनली अब तक मेरा एक्सपीरियंस नहीं हुआ। लेकिन जब मैं सक्सेस स्टोरीज देखती हूँ, और स्पेशली वो खवातीन जो हमारी हैं बिजनेस प्रमोशन वाली, जो कि पाकिस्तान से देसी सामान बड़े अच्छे अच्छे देखने को मिले हैं, देसी कपड़ों से लेकर मट्टी वाले बर्तनों से लेकर, और इवन ये कि जो पाकिस्तानी स्पेशल सौगातें हैं, सर्दियों की अलग, गर्मियों की अलग, और जो जैसे पाकोला ड्रिंक्स हैं, मैं एडवर्टीजमेंट नहीं कर रही, लेकिन उसके अलावा ये जो चिप्स वगैरह, देसी बिस्किट्स वगैरह, और बहुत अच्छा और वैरायटी ऑफ स्टफ आपको इजीली अवेलेबल है। और ये है कि वो खवातीन ही एक काइंड ऑफ मीडियम बनी है कि हमें परदेश में देश के मजे देने के लिए, और स्पेशली वो खवातीन जो कि अगर मेरे कील में ऐसी, बल्कि मैंने एक दो बार पूछा भी था कि मुझे कोई खातून दे सकती हैं सर्विस देसी खाना बनाने की, तो अनफॉर्चुनेटली आई कुडंट फाइंड समवन। लेकिन अगर मैं अभी बड़े शहरों में रहती होती तो डेफिनेटली खाने वाने ट्राई जरूर किए जाते, क्योंकि जो फूड ब्लॉगर्स हैं वो हमारे केटरिंग सर्विसेज भी प्रोवाइड करती हैं। और स्पेशली केक्स तो मैं जरूर मेंशन करना चाहूंगी, इतने जबरदस्त थीम ओरिएंटेड जो केक्स होते हैं, उनको देख के तो हमेशा मेरे दिल में हसरत ही आती है कि काश मैं भी इतना अच्छा पका सकती और बेक कर सकती। तो ये बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है औरतों को फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट सिर्फ यही नहीं करने का, बल्कि उनको काइंड ऑफ जो चीज, जिस चीज में उनका दिल लगता है वो चीज अपना इजहार करने का, किसी भी आर्टिस्टिक फ्रंट पे हो जाए, या जो भी स्किल अगर आप किसी से शेयर करते हैं, यू फील योरसेल्फ सो हैप्पी और empowered ना टू शेयर योर स्टफ विद अदर्स. So this is really this platform is inclusive and has all the stuff that one lady needs in living in Germany. मैं इसमें ऐड करना चाहूँगी कि जी मैंने ट्राई किया है एनडीडी, और मैंने ज्वेलरी ली थी हमारी एक इंडिया की खातून है मिस आनंद, उनसे, और बहुत सस्ती और बहुत कमाल की ज्वेलरी थी। मैंने सुमेरा आबिद से ज्वेलरी ली है, वो बड़ी अच्छी थी। फाइजा से मैंने कपड़े लिए हैं, शमामा से बेड शीट्स ली हैं। और कोई कंप्लेन होती है तो उन कंप्लेंट्स का बहुत अच्छे से रिस्पांस भी देती हैं, और वो बड़ा ख्याल रखती हैं कि उनकी जो कस्टमर्स हैं वो खुश रहें और उनको उनकी मर्जी की चीज़ प्रोवाइड की जाए। अच्छा, माशाल्लाह, ये बिल्कुल शमामा और हाँ जी, जो मिस आनंद है और शमामा, वाकई ये दो नाम तो मुझे पक्के याद हो गए। मैंने कहा डेफिनेटली ये मेरा गो टू शॉप है जब भी कुछ देसी चाहिए हो तो। सारी तो चीज़ें ठीक होती हैं, लेकिन काफ़ी दफ़ा हमें जो है ना वो ख़वातीन को इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट करना बहुत ज़रूरी होता है, और ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है आरडीडी की इंडीड, कि वो छोटे सेलर्स को इस तरह प्रमोट कर रही हैं।
अस्का आपने जो है ना वो एक इंडियन लेडी का ज़िक्र किया और उसमें मुझे मैं ये कहूँगी मतलब मैं ये समझ रही हूँ कि देखें ये एक लिंक्स बिल्ड हो रहे हैं ना इंडिया पाकिस्तान के दरमियान एक दोस्ती के, फ्रेंडशिप के। ये भी एक अच्छी चीज़ है कि 2 कंट्रीज़ जो हैं वो पीपल टू पीपल लिंक के थ्रू करीब आ रही हैं। तो मैं साइमा को ये एडवाइस करूँगी कि एक जो है ना एक लिंक इस तरह का भी एक सेगमेंट बनाएँ, जिसमें आप ना प्रमोट फ्रेंडशिप मतलब प्रमोट फ्रेंडशिप बिटवीन द नेबरिंग कंट्रीज, इस तरह की एक चीज़ भी आप कर सकती हैं जिसमें आप ये सक्सेस स्टोरीज करेंगे किस तरह से जो है ना वो लोग आपस में कनेक्ट हो रहे हैं सब कॉन्टिनेंट के। ये एक अच्छी इंशाल्लाह। और इंटरेस्टिंग और न्यू चीज़ रहेगी। अच्छा इसका अब मैं ना थोड़ा सा आपसे लाइट क्वेश्चन कहूँगी क्योंकि मैंने आपको घरेलू मुतशद्दिद डोमेस्टिक अब्यूज़ कर करके मुझे लगता है कि थोड़ा सा परेशान कर दिया है। सिद्रा ने जिक्र किया बैजेस का। जी, ज़रा मुझे बताएँ मैंने भी पोस्ट देखी हैं और बड़ी ख़वातीन जो है ना वो इसके लिए एंथुसियास्ट हैं और खरीदे भी हैं उन्होंने बड़े सारे, मेरे ख़्याल से साइमा शायद आउट ऑफ स्टॉक भी हो गई हैं। ये इस बैच का मतलब क्या आप देखती हैं? क्या फ्यूचर क्या देख रही हैं? और क्या इसका आइडिया क्या होगा इन लोगों का ये निकालने का ना? और आपने अब ये बैच लिया है, आपने भी लिया है मेरे ख़्याल से, है ना? मैंने देखा है शायद हाँ जी, मैंने भी लिया है। आपकी भी पोस्ट हाँ जी, तो वो मतलब आप कैसा फ़ील कर रही हैं बैच लेने के बाद? उसको पहन-शहन के ज़रा हमें एक तो आपने तस्वीर भेजनी है ग्रुप में, ठीक है? और दूसरा ये कि बताएँ कितना एम्पावरमेंट में कितना हेल्प आउट करता है ये चीज़? बेसिकली ऐसा है कि आरडीडी एक फैमिली की तरह है। तो आरडीडी बैच जब मैंने रिसीव किया तो मुझे ऐसा लगा कि मेरे पास एक सोवेनियर आ गया कि ओके आई एम ऑफिशियल मेंबर हियर। तो हाँ और ये बड़ा एक्साइटिंग है। बेसिकली आरडीडी मतलब कोई पाकिस्तानी इस तरह से इवेंट्स हो रहा होता है, जब हमारा कोई कल्चरल इवेंट हो रहा होता है पाकिस्तानी या इंडियन या कोई भी देसी इवेंट हो रहा है, तो उसमें अक्सर ये होता है कि हम ख़वातीन जाती हैं और फिर एक दूसरे को ऐसे देख रही होती हैं कि इनको कहीं देखा है। तो उस बैच का मकसद ये है कि हमने अगर वो बैच पहना हो तो इट्स लाइक रिकॉग्नाइजेबल है उसी टाइम पे कि अच्छा हाँ इनको आईडीडी में देखा है। मेरे साथ रिसेंटली ये वाक़या हुआ है, पिछले ही वीकेंड पर म्यूनिख की यहाँ पे ऊबान में मैं जा रही थी और 2 ख़वातीन आपस में बात कर रही थी मुझे देख कर के इनको कहीं देखा है। तो मैं वहाँ गई और मैंने उन्हें बताया कि आपने मुझे आरडीडी पर देखा है। तो वो एक ये असल में आरडीडी बैच का ये कॉन्सेप्ट है। ज़्यादा साइमा मेरे ख्याल से इसके बारे में बता सकती हैं कि उन्होंने क्या सोचकर एक बैच बनाया। लेकिन मुझे तो ये मैंने जो खरीदा तो मैंने इसलिए खरीदा कि इट्स अ गुड आइडेंटिटी एंड अ सोवेनियर। मैं तो बड़ा प्राउडली पहनूंगी। मैं अच्छा इस पे थोड़ा सा कंटिन्यू करती हूँ आस्का की बात पे, क्योंकि मजे की बात यही है क्योंकि काफी दफा यही हुआ हमें जब फीडबैक मिला कि जो भी कोई फंक्शंस हुए तो अक्सर वहां पर लोग एक दूसरे से खिचखिचा के पूछ भी नहीं पा रहे होते हैं कि आपको हम कहाँ मिले पहले, या मुझे लगता है कि आपके नाम को मैं जानती हूँ, या कोई एक दूसरे से इंट्रोडक्शन होता है तो इंसान सोच में पड़ जाता है कि कहीं ना कहीं से ये नाम सुना हुआ लग रहा है। तो काफी लेडीज ने कहा कि भाई कोई ऐसी चीज हो जिससे दूर से पता चल जाए कि हाँ ये शायद उसी ग्रुप की कोई मेंबर है। तो फिर उससे आइडिया निकला कि चलो 5th एनिवर्सरी पे हम लोग कुछ ऐसी चीज निकालते हैं, काइंड ऑफ मर्चेंडाइज आर्टिकल। ये तो भी शुरुआत है, शायद आगे जाके और भी आर्टिकल्स इस तरह के निकले जो हम प्रोवाइड कर सकें लोगों को। लेकिन एक चीज ऐसी थी कि छोटी सी कोई चीज हो जिससे हम एक तो अपने मेंबर्स को थोड़ा अप्रिसिएशन के लिए भी कुछ दे सकें हमारी तरफ से, कि उनको लगे कि हाँ वो मेंबर हैं, और दूसरा वही कि कहीं भी जाएं उनको इजीली मतलब कनेक्शन हो जाए और फ्रेंडशिप्स बनने में आसानी हो इस बैच के थ्रू। साइमा आपने फ्रेंडशिप्स की बात की, वाकई आरडीडी के थ्रू मेरी बहुत फ्रेंड्स बनी है। मैंने जब शहर अपना मूव किया विद इन जर्मनी तो मैंने हमेशा आरडीडी पे पोस्ट किया कि मुझे यहाँ पे फ्रेंड्स चाहिए, और अचानक एकदम से 2-3-4 ख़वातीन ज़रूर हाजिर हो जाती हैं दोस्ती के लिए। तो बड़ा अच्छा प्लेटफॉर्म है दोस्त ढूंढने के लिए भी। बिल्कुल, हम भी तो मिले थे फर्स्ट हाँ गैदरिंग जो बड़ी थी। बिल्कुल। वो भी मजेदार चीज थी, उसके थ्रू भी हमारी मुलाकात काफी लोगों से हुई, फर्स्ट टाइम हुई, लेकिन इंटरेक्शन इतनी अच्छी थी कि इंशाल्लाह अब इस चीज पे भी हम थोड़ा काम कर रहे हैं कि आगे जाके और भी बड़ी गैदरिंग्स रखेंगे जिसमें सबसे मिलेंगे, मुलाकात करेंगे। अच्छा साइमा
آپ جو ہے نا وہ شو سے پہلے تھوڑی سا پریشان ہو رہی تھی 1 گھنٹے کا شو کیسے ہوگا, میں کر سکوں گی نہیں ہوگا, لیکن دیکھ لیں پھر بھی جو ہے نا وہ ہم آلموسٹ 50 منٹس کو ٹچ کرنے لگے, اس لیے اب میں تھوڑا سا اسپیڈ اپ کروں گی. مجھے یہ بتائیں کہ آپ نے ابھی تک کون سے پروجیکٹس جو ہیں وہ اچیو کر لیے ہیں, کمپلیٹ کر لیے ہیں, اور کون سے آن گوئنگ ہیں, کیونکہ ثانیہ کے ساتھ میری وقتاً فوقتاً بات چیت ہوتی رہتی ہے, اور وہ مجھے انہوں نے بتایا کہ ان کے کافی سارے ایسے پروجیکٹس ہیں پرٹیکولرلی ان پاکستان جو کہ آن گراؤنڈ چل رہے ہیں. اس پہ تھوڑا سا جی ہمیں بتائیں کہ وہ کون سے پروجیکٹس ہیں. ہم لوگوں نے یہ پروجیکٹس کا جو کام ہے 2017 سے سٹارٹ کیا تھا. اس وقت ہم چاہ رہے تھے کہ ہم مل کے جو جوائن کر کے سب لوگوں کے ساتھ جو اچیو کر سکتے ہیں وہ شاید ہی ہم اکیلے کر پائیں. تو رمضانوں سے ہم لوگوں نے سٹارٹ لیا تھا کہ پیسے جمع کر کے ہم لوگوں نے تھر میں, بدین میں, بلوچستان میں ہم نے فوڈ پیکس پرووائڈ کیے تھے. ہم لوگوں نے رمضان میں یہ کنویں کھدوائے, واٹر ویلز, ڈیپ ویلز, سولر ویلز, مطلب اس طرح کی چیزوں کے ہم لوگوں نے مل جل کے چھوٹے سے سٹارٹ تو لیا تھا کہ ہم جو این جی اوز ہیں ان کے ساتھ, جو ریلائبل این جی اوز ہیں جو ہمیں مطلب فیڈ بیک بھی دیں, ہمیں پتہ رہے کہ جو ہم پیسے جمع کر رہے ہیں اپنے ممبرس کے ان کو مطلب ہم لوگ طریقے سے آگے بڑھائیں, اور ان کو مطلب ایک ذمہ داری ہوتی ہے لوگوں سے پیسے لینا اور پھر اس جگہ لگانا جس کا ہم لوگوں نے وعدہ کیا ہے. تو مطلب وہ ذمہ داری ہم نے اٹھائی اور وعدے پورے بھی کیے. پھر پکچرز کے تھرو ہم لوگوں نے ان کو بتایا بھی کہ جہاں اپنے پیسے لگائے ہیں وہیں پر مطلب یہ آپ کو پکچرز مل رہی ہیں ایز اے پروف. تو اس کے ذریعے مطلب پاکستان میں بھی صرف ہیلپ ہوئی, اور پاکستان کے علاوہ ہم لوگوں نے صومالیہ میں بھی, برما میں, ہم نے سری لنکا میں یہ سب چیزوں کے فوڈ پیکس بھی دیے, وہاں پر پیڑ بھی ہم نے لگوائے. کافی اس طرح کی چیزوں کے پروجیکٹس ہمارے چلتے رہے. آگے بھی مطلب پروجیکٹس کافی ہیں جو رننگ میں بھی ہیں بیک گراؤنڈ میں, اور جو ابھی ان کی پلاننگ بھی چل رہی ہے. انشاءاللہ مطلب جب وہ پوری چیزیں مکمل طریقے سے سامنے لانے کے لیے تیار ہو جائیں گی پھر ہم ریویل کریں گے کہ اور کون سے پروجیکٹس ہیں انشاءاللہ. انشاءاللہ. اچھا, مجھے اب یہ بتائیں کہ کون سی آپ دیکھتی ہیں بگیسٹ اچیومنٹ آف آر ڈی ڈی, مطلب اوور آل دیز ایئرس. بگیسٹ اچیومنٹ یہی ہے کہ پازیٹیوٹی قائم رکھی اس گروپ میں. مطلب نیگیٹیوٹی کو ہم لوگوں نے, پہلی بات نیگیٹیوٹی اتنی آئی نہیں, اگر آنے کی کوشش بھی کی گئی تو وہ اس کو مٹانے کا بھی ہمارے پاس مطلب ذریعہ نکلا. اور پازیٹیوٹی, ایک اپنا پن جو ہے اس کو قائم جو رکھا اتنے سالوں میں, میں کہتی ہوں وہی ایک بگیسٹ اچیومنٹ ہے, کیونکہ اس چیز کو ساتھ لے کے ہم لوگ ایک بڑی فیملی بنے اور لوگوں کو ایک مطلب محفوظ جگہ ملی, محفوظ پلیٹ فارم دیا ہم لوگوں نے جہاں وہ ہر بات اپنی شیئر کر سکتے ہیں, ہر مسئلے کا حل ان کو مل سکتا ہے. یہ چیز مطلب میں کہتی ہوں سب سے بڑی اچیومنٹ ہے ہم لوگوں کی. سدرا آپ کچھ کہنا چاہیں گی اس ٹاپک پہ بھی؟ جی, میں آپ کو یہ سجیشن دینا چاہ رہی تھی کہ جو آپ بات کر رہی تھی نا کہ گیدرنگز کی جائیں, تو یہی سجیشن ہے میری طرف سے کہ جو 5-7 جو بڑے شہر ہیں جرمنی میں, اگر ان میں بھی ہو سکے پاسبل, تاکہ مجھے بھی جوائن کرنے کا موقع مل سکے. انشاءاللہ یہ بالکل پلاننگ میں ہے. ہم عنقریب چاہ رہے ہیں کہ بڑے بڑے شہروں میں کوئی نہ کوئی گیدرنگ ابھی سٹارٹ لیں. ابھی پہلی جو ہے پلاننگ جو چل رہی ہے اس سال کی برلن میں ہوگا, جی جی اور اس کے بعد ابھی دیکھتے ہیں انشاءاللہ اور بھی باقی شہروں میں. ہیمبرگ سائٹ پہ بھی پلاننگ میں ہے, میونک سائٹ پہ بھی ہے, وہاں کی کمیونٹی تو خیر کافی اسٹرانگ ہے, کافی بڑی ہے, اور کولون کے سائٹ پہ بھی کچھ نہ کچھ کریں گے. اور ناردرن ایریاز میں آئی گیس ہیمبرگ تھوڑا سا اچھا ہے, بیچ جی میں ہے, سرکل میں ہے, تو وہاں سے کافی لوگ جوائن کر سکتے ہیں. بہترین ہو گیا. انشاءاللہ وہ بالکل پلاننگ میں ہے. جب سب چیزیں مکمل ہو جائیں گی تو پھر بتائیں گے کہ کہاں رکھ رہے ہیں گیدرنگس. اس کا آپ کچھ کہنا چاہیں گی؟ آپ کی طرف گیدرنگس ہوئیں ابھی عنقریب؟ ابھی میونک میں تو میں نے کوئی گیدرنگ نہیں دیکھی, لیکن کرونا سے پہلے تب میں ویسے بھی گیسر میں رہتی تھی, تو وہاں پر 2 دفعہ گیدرنگ ہوئی تھی آر ڈی ڈی کے تھرو, اور کافی ساری بالکل. خواتین ملیں وہاں پر, اور وہاں پہ دوستی ہوئی اور بڑا اچھا ٹائم گزارا سب نے.
एक बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस है। और मज़े की बात यह है कि सब जान रहे होते हैं एक दूसरे को, नाम से सबको पता होता है और मिलकर एकदम बहुत खुशी होती है। अच्छा सिद्रा, मैं अब आपकी तरफ आना चाहूँगी और यही क्वेश्चन करूँगी जो मैंने साइमा से किया है कि आपके ख्याल में आरडीडी की बिगेस्ट अचीवमेंट क्या है अभी तक? मेरे नजरिए के मुताबिक आरडीडी की बिगेस्ट अचीवमेंट, जैसे कि साइमा बता रही थी, जो वेल्थ का कॉन्सेप्ट है और जो कुर्बानियां और जो अंडर प्रिविलेज बच्चों को जो डिस्ट्रीब्यूशन है मुख्तलिफ चीजों की और जो पिक्चर्स के साथ दिखाया भी जाता है वो है, और उसके साथ साथ एक ऐसा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करना जिसमें कोई भी बंदा कोई भी बात खुलकर कर सकता है, अपने बिजनेस को प्रमोशन से लेकर अपनी जातियात में जो मसले मसाइल हैं या किसी किस्म का भी कंफ्यूजन है लाइफ में किसी चीज से रिलेटेड, उससे लेकर और बिल्ली के अंगे वोटे एक दूसरे के साथ शेयर करना कि ब्लैक फ्राइडेज आ रहे हैं या इस तरह की चीजें आ रही हैं, मतलब हर तरीके से बंदा एक दूसरे को फैसिलिटेट कर सकता है और जो करंट चीजें हो रही हों उनसे इन टच रह सकता है ना। ये आई थिंक टुगेदर ऑल द थिंग्स अंडर वन रूफ इज द बिगेस्ट अचीवमेंट ऑफ आरडीडी। अच्छा अस्का, अब क्योंकि हम प्रोग्राम के इख्तिताम की तरफ बढ़ रहे हैं, मुझे जो है ना आपकी तरफ से एक शॉर्ट मैसेज रिक्वायर्ड है कि आप क्या मैसेज देना चाहेंगी, बीइंग एन आरडीडी लेडी, एन आरडीडी मेंबर, अ प्राउड मेंबर, आप क्या कहना चाहेंगी दूसरी खवातीन के लिए और इन जनरल पाकिस्तानी कम्युनिटी के लिए? बीइंग अ प्राउड मेंबर ऑफ आरडीडी, मैं ये मैसेज थ्रो करना चाहूँगी हमारी ख़वातीन को, बल्कि हमारे मर्द हजरात को भी, कि अगर उनकी ख़वातीन ने, उनकी मिसेस ने अगर अभी तक आरडीडी ज्वाइन नहीं किया तो उनको ज्वाइन करवाएं, क्योंकि ये बहुत क्रिएटिव प्लेटफॉर्म है और यहाँ से उनकी जो तन्हाई है वो बड़ी ख़त्म हो जाएगी, उनको घर बैठे दोस्तें मिल जाएंगी। और ख़वातीन से ये भी, मैं बीइंग द लीडर ऑफ गोल्डन हार्ट आरडीडी गोल्डन हार्ट लिसनर्स ग्रुप, मैं ये कहना चाहूँगी कि ख़वातीन से कि अगर आप परेशान हैं तो आप बात करें। आपकी परेशानी आपको किसी ना किसी से उसके बारे में ज़िक्र करें। अगर आपको आपके इर्द गिर्द कोई नहीं मिलता तो आप आरडीडी से, आरडीडी की एडमिन से या ग्रुप में एनोनिमस पोस्ट करें, हम यहाँ हैं, हम आपकी हेल्प करेंगे, मदद करेंगे, जिस तरह से जितना भी हो सका हमारी तरफ से पूरी कोशिश होगी कि आपको आपकी परेशानी सॉर्ट आउट की जाए। बहुत खूब। अस्का, सिद्रा आप क्या कहना चाहेंगी प्रोग्राम के एंड पे? जी, मैं भी बिल्कुल अस्का ने जो बात की वही बात कहना चाहूंगी कि अभी तक जिन खवातीन ने जो कि देसी ममालिक से जर्मनी में रह रही हैं उन्होंने नहीं ज्वाइन किया, वो जरूर इसको ज्वाइन करें और इसके जितने सारे फवायद हैं उनसे वो भी फायदा उठा सकें। और ये है कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसमें हम एक दूसरे को प्रमोट कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं, तो जितने ज्यादा हेल्पिंग हैंड्स होंगे उतना ही अच्छा रहेगा फ्यूचर के लिए ना। सही, थैंक यू वेरी मच। साइमा, अब मैं चाहूँगी कि आप के मैसेज पे जो है ना वो हम प्रोग्राम को एंड करें, तो आप हमें कुछ खूबसूरत सी कोई बात बताएं आरडीडी के बारे में भी और सानिया और अपने बारे में भी, और कुछ मैसेज भी दें खवातीन के लिए। मैं यही कहना चाहूँगी कि सानिया ने और मैंने मतलब ये जो प्लेटफॉर्म बनाया है, हमने वाकई में शुरू में बिल्कुल नहीं सोचा था कि हम इसकी सोच से भी आगे बढ़ पाएंगे। मतलब जो हमने सोचा था उससे भी हम आगे, हमें जो प्यार मिला, जो ट्रस्ट मिला मेंबर्स के थ्रू और जो फीडबैक मिला, मतलब बहुत अमेजिंगली था हम सब के लिए। और हमने टाइम टू टाइम ये चीज़ें शेयर भी की हैं और ये जो सफ़र था यहाँ तक का, मतलब ये 5 साल जो मुकम्मल हुआ है हमारे लिए काफ़ी कमाल के रहे हैं। और हमारी बिल्कुल कोशिश रहेगी कि हम आगे भी सब मेंबर्स के मयार से और ऊंचा पहुंचें और जो सोचा है उससे भी आगे हम सारे प्रोजेक्ट्स कर सकें। और हमें बिल्कुल पूरा भरोसा है कि जो भी हमारे मेंबर्स हैं और जो आगे हमारे साथ और ज्वाइन करेंगे, कि ये सब लेडीज में इतना टैलेंट छुपा हुआ है कि इसको हम आगे लाने में बिल्कुल मतलब कसर नहीं छोड़ेंगे, कि हम सबकी मदद करेंगे कि वो आगे बढ़े एज अ खवातीन। बहुत खूब। साइमा, मेरी ये दुआ है, बल्कि हम सबकी दुआ है कि अल्लाह आपकी और सानिया की तौफीकात में इजाफा करे और आरडीडी को बहुत 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 ज़्यादा तरक्की दे।
بہت زیادہ شکریہ آپ تینوں خوبصورت خواتین کا آج ہمیں جوائن کرنے کا اور ہمارے ناظرین کا جنہوں نے یہ ہیپننگ شو دیکھا جس میں آئی تھنک فرسٹ ٹائم ایسا ہوا ہے کہ اتنی ساری خواتین اکٹھی اسکرین پر آ گئی ہیں اور مزے کی بات یہ کہ بڑی اچھے اور خوشگوار ماحول میں رہی ہیں. جو خواتین کے بارے میں ایک پرسپیکٹیو ہے نا کہ لڑتی ہیں جھگڑتی ہیں بولنے نہیں دیتی, تو ایسا بالکل بھی نہیں ہوا. ہم نے دیکھا کہ بڑا زبردست اور کیجول ٹاک رہا ہے اور بہت ساری معلومات ہمیں پتہ چلی ہیں. اسپیشلی یہ چیز فرسٹ ٹائم ہمارے ناظرین کو جو کہ ہمیں یورپ میں بھی دیکھ رہے ہیں, پاکستان میں بھی دیکھ رہے ہیں اور جگہوں پہ بھی دیکھ رہے ہیں, انہیں پتہ چلی ہے کہ کس طرح سے جرمنی میں دیسی خواتین کا کتنا بڑا گروپ ایگزسٹ کر رہا ہے اور وہ کس طرح خواتین کی زندگیاں آسان بنا رہا ہے. میں یہ سمجھتی ہوں کہ اس کو ایز اے تھریٹ دیکھنے کا یا اس کو وہ چیز دیکھنے کا کہ جو کہ سیگریگیشن کریٹ کر رہا ہے سوسائٹی میں, اس کے بجائے اگر ہم اسے ایسے دیکھیں کہ یہ کنسٹرکٹیو چیز ہے. خواتین جو کہ گھریلو مسائل میں الجھی ہوئی ہیں, جو کہ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ اگر آپ کے گھر میں چھک چھک ہوتی ہے تو خواتین کو یہ ایک پلیٹ فارم مل گیا کہ وہ وینٹ آؤٹ کر سکتی ہیں, یا وہ چیزیں جو کہ ہسبینڈ سے چھوٹی چھوٹی ہیلپ سیکھ کر رہی تھی وہ اب اپنی فیلو خواتین سے سیکھ کر سکتی ہیں, اور یہ چیزیں مردوں کی زندگی میں آسانی پیدا کر رہی ہیں اگر وہ اس چیز کو سمجھیں. تو میں سمجھتی ہوں کہ ہمیں بطور پاکستانی کمیونٹی اس گروپ کو سپورٹ کرنا چاہیے جس حد تک ہو سکے. اگر ایڈمنس چاہیں, یہ نہیں ہے کہ بالکل اس پروگرام کا یہ مقصد نہیں ہے کہ سارے جو ہے نا وہ آر ڈی ڈی کی طرف بھاگ پڑے, چاہے انہیں ہیلپ چاہیے یا نہیں چاہیے تو آپ لوگ جو ہے نا وہ آفر کریں. اس طرح نہیں ہے. ثانیہ اور شیمہ بہت اچھے طریقے سے چلا رہی ہیں, ہمیں امید ہے کہ وہ مزید اچھے طریقے سے اسے چلائیں گی. جہاں پہ بھی ہو سکا جذبہ نیوز بھی, میں خود بھی اور ہمارے تمام فرینڈز جو ہیں وہ ہیلپ کے لیے موجود ہیں. اسی کے ساتھ میں پروگرام کا اختتام کرنا چاہوں گی. اپنے اور اپنے گھر والوں کا بہت خیال رکھیں. تھینک یو. اللہ حافظ. بہت شکریہ. اللہ حافظ. اللہ حافظ. شکریہ.